Good morning, class 11 students. See, we have completed chapter 4 Hadha. Chapter 4 vectors we completed. We still left with two more topics in chapter 4, that is projectile motion and uniform circular motion. Now in chapter 3 there was one topic which I left that time because I told you first you need to understand vectors, then you go for this topic. That topic is relative velocity. Okay, now this topic is of two types. One is relative velocity in a straight line motion. On this relative velocity in a plane where the velocities are in different directions. Here the velocities will be either opposite or same direction. That is in a straight line case. Okay. Now this topic is quite important and the numericals of this topic is actually a wonder of the world. So you need to understand very nicely what is happening. Okay. Now first of all, यहाँ पे कुछ चीजें खुद से लिखोगे आप रफ में जो मैं बताऊंगा. मैं यहाँ लिखूंगा नहीं. ओके ना. जब मैं बोलता हूं कि v is the velocity of body, this statement is wrong. अभी तक मैंने पढ़ा था ना, let for example velocity of body is 5 meter per second. तो when I say velocity of a body, this is wrong. Velocity of body बोल के कुछ नहीं होता है. ओके ना. So it is actual केस में हम बोलते हैं velocity of body with respect to earth or with respect to ground is 5 meter per second. So whatever velocities we deal with, मैं बोलता हूँ ना एक बाइक जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, वो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, वो उस बॉडी का वेलोसिटी नहीं है, वो वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है. दैट मींस द बॉडी व्हिच इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, फॉर देम दैट बाइक इज 40 किलोमीटर पर आवर. ओके, बट अगर मैं भी मूव करने लगा और मेरे आगे से बाइक गया 40 किलोमीटर पर आवर से, देन मुझे वो 40 किलोमीटर पर आवर नहीं दिखेगा, मुझे वो रिलेटिव दिखेगा, रिजल्टेंट दिखेगा. ओके, दैट मींस आई एम आल्सो मूविंग. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन दिस टॉपिक कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. ये टॉपिक कब आता है फिजिक्स में, कब करना पड़ता है, किस न्यूमेरिकल में करना पड़ता है. सो अगर न्यूमेरिकल में बॉडीज मूव कर रहे हैं तो वो एक दूसरे का वेलोसिटी एग्जैक्ट नहीं देख पाएंगे. दोस ऑल थिंग्स यू ट्राई टू नो लैंग्वेज. एक दूसरे का वेलोसिटी एग्जैक्टली नहीं देख पाएंगे. दे विल सी ईच अदर्स रिलेटिव वेलोसिटी. दैट मींस ए एंड बी मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी, किसी डायरेक्शन मूव कर रहा है, इधर उधर जा रहा हो, कैसे जा रहा हो, कैसे जा रहा हो. ए विल कैन नॉट ऑब्जर्व द एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ बी. The exact velocity of B is the velocity of with respect to ground. The exact velocity of A is the velocity with respect to ground. What A will see, the B velocity is, जो A को दिखेगा B का velocity is velocity of B with respect to A. B का velocity with respect to A जो होगा कैलकुलेट करके जो आएगा, जो relative velocity आएगा, that is the velocity of B जो A देखेगा. Okay, समझ में आया. अब B का velocity जो A देखा, that is VBA, velocity of B with respect to A. Now velocity of A with respect to B. B को A का velocity कितना दिखेगा? Okay, the velocity of A with respect to B, मतलब A का velocity B को कितना दिख रहा है. तो मैं जब ये बोलता हूँ velocity of body with respect to ground, that means ground में खड़े होके body का velocity कितना दिख रहा है. तो अगर मैं बोलूँ velocity of B with respect to A, तो A को B का velocity कितना दिख रहा है? Those things is right. Okay, velocity of B, how much the velocity of B appears to A, that is velocity of B with respect to A. समझ में आया? फिर से बता रहा हूं, velocity of B appears to A, मतलब A को B का कितना velocity दिख रहा है, that is velocity of B with respect to A. And these things comes into existence in any numerical when their bodies are moving to each, when they are continuously moving, सारे मूव कर रहे हैं, दोनों बॉडी मूव कर रहा है, तब ये रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट फिजिक्स में आता है. क्लियर? तो एक्चुअली में पता है क्या, इन रियल लाइफ हर चीज मूव कर रहा है. मैं जब बोलता हूँ ना, मैंने बोला था ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस, याद है? तो मैं जब बोलता हूँ वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैं ग्राउंड में रुका हूँ तो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है. क्या मैं ग्राउंड में रुका हूँ एक्चुअल लाइफ में? नो, अर्थ इज मूविंग, मैं भी मूव कर रहा हूँ. सो दिस ऑल आर इमेजिनरी केस क्लास. एक्चुअल में एवरीथिंग इज मूविंग दिस होल वर्ल्ड, बट हमें देखना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट. जैसे अगर मैं दो आदमी है, एक ग्राउंड में रुका हुआ है, एक ग्राउंड में मूव कर रहा है, तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वो मूव कर रहा है, मैं रुका हूं, देन ये काम करेगा. बट तीसरा आदमी जो अर्थ से बाहर है, उसके लिए मैं भी मूव कर रहा हूं, वो बाइक वाला भी मूव कर रहा है, उसको फिर दोनों अलग अलग दिखेगा. You getting me what I'm saying? So actually, so you need to understand. So what you need to understand is रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट कब आता है फिजिक्स में.
तो कब आता है? when there is a relative change, when there is a motion of the two bodies. Okay, दोनों bodies when they are moving, then their exact velocity is not appear. Exact velocity appear नहीं करता. एक का velocity दूसरे के respect में होता है, दूसरे का velocity फर्स्ट के respect में होता है. Okay, तब relative velocity concept आता है. I think you understand. Now let's make a gist. क्या क्या तुम्हें लिखना है अगर तुम कंफ्यूज हो तो? फर्स्ट पार्ट विल राइट कि वेलोसिटी बॉडी मतलब क्या होता है, वेलोसिटी बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. नेक्स्ट तुम लिखोगे कि इफ द बॉडीज आर मूविंग देन द एग्जैक्ट वेलोसिटी आर नॉट एक्टिंग, देन द रिलेटिव वेलोसिटी एक्ट. ओके, दैट मींस जो फॉर्मूला लगाओगे ना ऐसे इक्वल्स टू u t प्लस r पे जितना 20 का प्लस उसका 2s, वो सब फॉर्मूलाज में एग्जैक्ट वेलोसिटी काम नहीं करेगा, रिलेटिव वेलोसिटी काम करेगा. और वो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे पढ़ते हैं? ऐसे पढ़ते हैं, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू a. दैट मींस a को b का कितना वेलोसिटी दिख रहा है, और उल्टा वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b को a का वेलोसिटी कितना दिख रहा है. दिस इज ऑल अबाउट द जनरल concept when the relative velocity come into existence in physics world in any numericals. Okay, now we will understand what is relative velocity in a straight line motion. Okay, what does the definition say? The definition say the rate of change of relative position. This word is very important. ये तुम्हें समझना बहुत जरूरी है. The rate of change of relative position between two bodies is known as relative velocity of one body with respect to another. Now, what is the meaning of relative position? Relative position मतलब क्या? Separation between the two bodies. एक बॉडी यहाँ पे है, एक बॉडी यहाँ पे है, तो इनका रिलेटिव पोजीशन क्या है? इनके बीच का सेपरेशन, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव पोजीशन. ओके, अब मुझे क्या निकालना है? चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन निकालना है. मतलब एट t इक्वल्स टू 0 मान ले सेपरेशन कितना था, आफ्टर सम टाइम सेपरेशन दूसरा कुछ हो गया, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन, इनिशियल सेपरेशन, फाइनल सेपरेशन, फाइनल माइनस इनिशियल सेपरेशन, तो फाइनल सेपरेशन माइनस इनिशियल सेपरेशन, दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन. तो व्हाट इज रिलेटिव पोजीशन? सेपरेशन बिटवीन द टू बॉडीज. व्हाट इज चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन? फाइनल सेपरेशन माइनस, मतलब इन फाइनल में कितना डिफरेंस था दोनों बॉडी के बीच में, और इनिशियल में कितना डिफरेंस था, दोनों डिफरेंस को माइनस करो, दैट इज चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन. नेक्स्ट, रेट ऑफ चेंज डिवाइडेड बाय टाइम. सो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a. Clear? Understood the definition? The velocity of BA is nothing but relative velocity of B, body B with respect to body A. So उसका फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल फॉर्मूला ये है, फाइनल सेपरेशन माइनस इनिशियल सेपरेशन बाय टाइम टेकन, एंड उसको हम डिराइव करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू V माइनस VA. ये डिराइव करके आएगा. ओके, एक्चुअल डेफिनेशन बोलता है ये दिस इज द डेफिनेशन, बट आई विल यूज दिस डेफिनेशन टू डिराइव दैट VBA इक्वल्स टू V माइनस VA. ओके, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो डेफिनेशन क्या बोलता है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी इज नथिंग बट फाइनल सेपरेशन माइनस इनिशियल सेपरेशन बाय टाइम टेकन. ओके, ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे टू गेट दैट VBA is also can be written as VB minus VA. Now we'll derive that expression. What we will derive? We will derive that VBA is VB minus VA. Subtraction कर दो दोनों velocities का. Okay, तो relative velocity निकल जाएगा. So what I'm doing? Let this is the origin. These are the two bodies A and B. At t equals to 0, body is here. That means this position is x01, initial position 01 लिखा है. At t equals to 0, body B is here. Its initial position is x02. So both the bodies are at these 2 points at t equals to 0. And what is the separation? x0. The x0 is initial separation. Okay. Then this body started moving with velocity va. This body started moving with velocity vb. Uniform velocity. तो आफ्टर टाइम t b मान ले यहाँ पहुंच गया, a मान ले यहाँ पहुंच गया. a जहां पहुंच गया उसका पोजीशन क्या है? x1. b जहां पहुंच गया उसका पोजीशन क्या है? x2. तो आफ्टर टाइम t, दिस इज द सेपरेशन बिटवीन द टू बॉडीज. आई एम टेकिंग इट एज x. यही चीज यहाँ लिखा हुआ है. कंसीडर टू बॉडीज a and b at x01 and x02 position from origin at t equals to 0. v and vb are the uniform velocities of the body. Let after time t a reach x1, a पहुंच गया x1 में and b पहुंच गया x2 में. Okay. Therefore, what is x01? Initial separation between the bodies at t equals to 0. ये गलत लिखा हूँ. x0 क्या है? Initial separation between the bodies. Initially कितना separation था? x is the final separation कितना था? Done. ये हुआ theory. अब जो derivation है उसमें कुछ स्पेशल नहीं लगाना है, यहीं से काम करना है, ठीक है ना? See, body A यहाँ था, इसने मूव करना स्टार्ट किया. After time t वहाँ यहाँ पहुंचा. That means can I say this is the distance covered in time t, a dash.
सो a dash is the distance traveled by a in time t. तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम. हाफ at स्क्वायर नहीं लगाना है, ठीक है ना. ut प्लस हाफ at स्क्वायर एक्सेलरेटेड बॉडी है ही नहीं है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना. तो सिंपली दिस वेलोसिटी इनटू टाइम. तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी a इनटू टाइम t. सिमिलरली b dash पहुंचा इन टाइम t. तो b से b dash इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी b इन टाइम t. सो डिस्टेंस velocity into time. Done. Now we will do a simple algebra. Okay. Take the body B. Body B initially यहाँ था, फिर यहाँ चला गया. तो ये पूरा डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ये डिस्टेंस x02 प्लस ये डिस्टेंस वही लिखा हूं मैं x2 इक्वल्स टू x2. किसका डिस्टेंस है? बॉडी B का. तो चेक आउट द बॉडी B. बॉडी B यहाँ का इनिशियल कितना डिस्टेंस है? x02 OB प्लस BB डैश. OB का वैल्यू लिख दिया x02, BB डैश वी हैव कैलकुलेटेड VB. नेक्स्ट बॉडी A में चलेगा. बॉडी A यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा था, ये है x1. तो बॉडी A का इनिशियल पोजीशन ये था x01 प्लस A डैश. व्हाट इज A डैश? VAT. यू गॉट टू इक्वेशंस. ओके, इन दोनों इक्वेशन से ये ला x नॉट ला. तो क्या करेंगे? x कैसे आएगा? x2 माइनस x1 करने से आएगा. तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों इक्वेशन को. फ्रॉम देयर वी अंडरस्टैंड कि x आ जाएगा. तो x2 माइनस x1 इक्वल्स टू x02 माइनस x01 प्लस VB माइनस VA. तो अब इसको मैं फाइनल सेपरेशन लिख सकता हूँ, इसको मैं इनिशियल सेपरेशन लिख सकता हूँ. फ्रॉम देयर वी गॉट व्हाट इज दिस? फाइनल सेपरेशन माइनस इनिशियल सेपरेशन बाय टाइम. व्हाट इज दिस? दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी. ओके, तो वी गॉट अ न्यू एक्सप्रेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, मतलब a को b का वेलोसिटी कितना दिख रहा है इज इक्वल टू vb माइनस v. क्लियर? अंडरस्टूड? दिस इज ऑल अबाउट द डेरिवेशन. ओके, नाउ लेट्स गो टू लिटिल बिट ऑफ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट. ओके, नाउ सी देयर आर सम न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन वी अप्लाई द फॉर्मूला vba, final separation x minus x naught by t, final separation minus initial separation by time taken. Mind it, huh? In this, B should be in front, A should be in back. आगे B होना चाहिए, पीछे A होना चाहिए. मतलब A का इनिशियल डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, B का इनिशियल डिस्टेंस कम होना चाहिए. अगर A का ज्यादा है तो ये AB होगा, ठीक है ना, उल्टा होगा. तो जो भी तुम लिख रहे हो, जो पहला वाला बॉडी आगे होना चाहिए, दूसरा वाला बॉडी पीछे होना चाहिए. That way only we derive the equation also. Okay, next. We know VBA equals to this. We also know VBA equals to VB minus VA. वही पहले वाला का पोजीशन आगे. ओके, बट दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन बोथ द वेलोसिटीज आर इन सेम डायरेक्शन. ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा. And if their velocities are in opposite direction, then relative velocity is addition of the velocities. So instead of subtraction, we add the velocities. ठीक है ना? तो ये सब चीज याद रखना पड़ेगा आपको. ओके, बट माइनस कब लगाएंगे? when they are in same direction. प्लस कब लगाएंगे? when they are in opposite direction. Now, next, there are three graphs I am about to discuss which are very important. These graphs you studied already. Now see, if I say I want to draw position time graph, so position time graph of a body which is moving uniformly. ये होगा ग्राफ. Initial position and uniformly body move कर रहा है, मतलब velocity constant है. तो ग्राफ will be straight line, equal distance in equal time. Slope is constant. ऐसे होता है ना ग्राफ. बट ये तो ग्राफ हुआ एक बॉडी का. आई वॉन्ट टू ड्रॉ एक्सील ग्राफ ऑफ टू बॉडीज टुगेदर, एक साथ बनाना है. राइट, नो दैट्स द डिफरेंस. हाँ, ये सब क्यों करना पड़ेगा, ये सब क्यों सोचना है? बनाना था पोजीशन टाइम ग्राफ. आई हैव टू ड्रॉ पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू बॉडीज ए एंड बी. टिल नाउ वी ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर वन बॉडी. इन अ सिंगल ग्राफ देयर इज ओनली वन बॉडी. सो वी नो इट्स अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. जो भी वेलोसिटी हमने अभी पढ़ा है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सीलरेटेड बॉडी नहीं है. क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो बॉडी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा विद सम इनिशियल पोजीशन. मगर अगर इसी में अगर मैं दूसरा बॉडी का भी बनाना जाऊं तो मुझे चेक करना पड़ेगा ना इनिशियली बॉडी कहां पे है, फिर धीरे धीरे बॉडी यहां जाएगा कि यहां जाएगा. दिस थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड. लिसन वेरी केयरफुली. 3 ग्राफ बनेगा, 1 2 3, पैरेलल हो जाएगा. दोनों बॉडी पैरेलल मूव कर रहा है. इसका मतलब क्या है? इनिशियल सेपरेशन एंड फाइनल सेपरेशन सेम होगा. मतलब इनिशियली इतना डिस्टेंस है दोनों में, फाइनल में इतना डिस्टेंस है, तब पैरेलल होगा. अगर ऐसा होगा इसका मतलब क्या है? इनिशियल सेपरेशन ये था, फाइनल सेपरेशन बढ़ गया. अगर ऐसा हुआ मतलब क्या है? इनिशियल सेपरेशन कुछ था, फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते ये वाला बॉडी
ये B है and this is A. Okay, they are moving like this. दिख रहा है तुम लोगों को? I think I have crossed the video only. Okay, ऐसा करके हाँ. This is B, this is A. They are moving. After some time A goes in front. That means velocity में बड़ा है. Okay, तो ऐसा हो जाएगा. दोनों मीट किया, फिर A आगे चला जाएगा B, फिर सेपरेशन बढ़ता जाएगा. So there are three cases. Okay, when we deal with two bodies in the same graph. तो मुझे फाइनल और इनिशियल सेपरेशन चेक करना पड़ेगा. तो फाइनल और इनिशियल सेपरेशन मतलब क्या? अगर दोनों बॉडी का वेलोसिटी सेम है, ठीक है, चलो लेट्स सी. सो वी नीड टू चेक इनिशियल और फाइनल सेपरेशन. इसलिए मैं ये सब लिख रहा हूं, डायरेक्टली ग्राफिक बना रहा हूं. ओके, सो लेट x01 and x02 आर द इनिशियल पोजीशन ऑफ A and B. सो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ. तो मुझे बनाना है xt ग्राफ. दिस इज x एंड दिस इज t. y एक्सिस x है. तो यहां पे एक बॉडी है x01 और यहां पे एक बॉडी है x02. दिस इज द इनिशियल सेपरेशन x0. इसी को बोलते हैं ना सेपरेशन. ओके, क्लियर. नाउ मान लो मैंने बोला x02 इज मोर देन x01. साफ साफ बोल दिया. मतलब b है ना x02, मतलब ये बॉडी b है और ये बॉडी a है. सबको समझ में आना चाहिए खुद से. हाँ, x01 a का पोजीशन है, x02 b का पोजीशन है. मतलब ये पॉइंट, इस पॉइंट में a है, इस पॉइंट में b है. क्लियर. तो मान लो a तो कितना वेलोसिटी मूव कर रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से. तो a हो गया ऐसे मान जाएगा. फॉर एग्जांपल दिस इज द मोशन ऑफ a, यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अब b को कैसे बनाऊं? पैरेलल बनाऊं, ऐसे बनाऊं, ऐसे बनाऊं? दैट डिपेंड्स ऑन केस, हाउ द वेलोसिटीज आर, how the separation will look like. So we know velocity of subtraction of both the velocities is final separation minus initial time. Relative velocity दोनों का ये होता है. तो अब इसके अंदर तीन केस आएगा. जब तक तुम्हें एक केस नहीं बोला जाएगा तब तुम ग्राफ बना नहीं सकते. You have to understand that we are unknown. We are totally blank now. If we don't know the cases, if we don't know the body's velocity, we don't know where the graph will go like this, where the graph will go like this. I don't have any idea. उनके बीच का सेपरेशन बढ़ेगा, घटेगा, जीरो होगा, ओके, या इक्वल रहेगा. उसको समझने के लिए मुझे केसेस करने. तो VB माइनस VB इक्वल टू VB है. तो इसमें क्या हो जाएगा? x माइनस x नॉट बाई टी जीरो हो जाएगा. दे आर इक्वल. दैट मींस x इक्वल्स टू x नॉट. सॉल्व कर लो. मतलब इनिशियल सेपरेशन और फाइनल सेपरेशन इक्वल हो गया. तो अगर फाइनल सेपरेशन से ये इनिशियल सेपरेशन ये है तो ये ऐसे मूव करेगा कि फाइनल सेपरेशन भी सेम रहेगा. दैट मींस पैरेलल मूव करेगा. ग्राफ दोनों पैरेलल होगा. यू अंडरस्टैंड पैरेलल कैसे पता चला? ओके, नेक्स्ट केस. आगे जाने वाला बॉडी जो आगे था वो बॉडी पीछे वाले बॉडी से ज्यादा स्पीड से चल रहा है. तो प्रैक्टिकल लाइफ सोचो. हाँ, ये पीछे वाला बॉडी है, ये वाला पीछे वाला, ये आगे वाला बॉडी है. ये ज्यादा तेज चल रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा? सेपरेशन बढ़ेगा ना इनके बीच का. सो दैट वी कैन शो मैथमेटिकली ऑल्सो. सी VB माइनस VA ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा. इधर चला गया. व्हाट इज V माइनस VA? x माइनस x नॉट बाई टी ग्रेटर देन जीरो आ गया. इससे क्या आया? x ग्रेटर देन x नॉट. मतलब फाइनल सेपरेशन इनिशियल सेपरेशन से बड़ा होगा. तो ग्राफ कैसा होगा? सी, x वर्सेस t. यहां पे बॉडी A था, यहां पे बॉडी B था. बॉडी A का पहले ग्राफ बना दो. स्ट्रेट लाइन बन गया. अब बॉडी B जो आगे जा रहा था, जो आगे खड़ा था, ये बॉडी आगे खड़ा था ना इनिशियल, उसका वेलोसिटी ज्यादा है. दैट मींस धीरे 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 उनका सेपरेशन बढ़ेगा. देखो सेपरेशन बढ़ रहा है. क्लियर. बनेगा स्ट्रेट लाइन. हाँ, कर्व मत बना देना. बनेगा स्ट्रेट लाइन बिकॉज यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना उसका. तो बनेगा स्ट्रेट लाइन बट टू मेक अ स्ट्रेट लाइन सच अ वे दैट द एक्सपेंशन इज इंक्रीजिंग. क्लियर. नेक्स्ट, अब आगे पीछे जाने वाला बॉडी का वेलोसिटी ज्यादा बढ़ा है. तो आगे वाला वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी पीछे वाला, तो धीरे धीरे क्या होगा? ओवरटेक कर जाएगा. तो अब क्या होगा? सी, VB माइनस VA लेस देन जीरो आया. दैट इज x माइनस x नॉट बाई टी लेस देन जीरो आया. x इज लेस देन x नॉट. दैट मींस व्हाट इज हैपनिंग? फाइनल पोजीशन, फाइनल सेपरेशन घटेगा. इनिशियल सेपरेशन, फाइनल सेपरेशन इज लेस देन द इनिशियल सेपरेशन. दैट मींस अगेन वी टेक x01 here. So this is body B, this is body A. For example, the body A is this. So body B ये स्ट्रेट लाइन ही होगा क्लास. हाँ, तो इसको थोड़ा इंक्लाइन बनाओ क्योंकि इसका वेलोसिटी ज्यादा बढ़ा है. VB का VA का वेलोसिटी बढ़ा है. तो ये भी क्या होगा? धीरे धीरे ऐसा होगा. बनेगा तो स्ट्रेट लाइन है. तो देयर आवर सी, दिस इज द इनिशियल सेपरेशन. स्लोली द इनिशियल सेपरेशन बिकम्स जीरो एंड देन ये आगे चला गया, B पीछे रह गया. दिस इज अ प्रैक्टिकल. यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ड्राइंग हियर.
and what is happening in real life. Clear? Okay, this is all about the theory part of straight line motion. Okay, now we will do the numericals of straight line motion. Relative velocity, we'll do the relative velocity numericals, but only in straight line cases. That means either they're moving in same direction or they're moving in opposite direction. Okay. Okay, so now see, we will start the numericals and you will get scared sometimes. डर लग जाएगा क्वेश्चन देख के. Try to understand it nicely. There are two trains, 120 meter and 80 meter in length, are running in opposite direction with velocities 42 km per hour and 30 km per hour. In what time they will completely cross each other? ठीक है ना? दो ट्रेन है, मतलब दो पटरी होगी. Let's go to real life. बाद में वहां देखेंगे. ओके, इस पटरी में एक तो ट्रेन है, इस पटरी में एक तो ट्रेन है. ऑफ कोर्स एक ही पटरी में तो नहीं आएगा ना. एक ही पटरी में अगर दोनों आएगा तो तगड़ा के मर जाएगा ना सारे के. सो दे विल बी द टू ट्रेन्स विल बी इन डिफरेंट रेल्स. रेल्स मींस व्हाट? पटरी. ओके, सो वन इज मूविंग दिस डायरेक्शन, वन इज मूविंग दिस डायरेक्शन. सो लेट आई एम टेकिंग दिस इज ट्रेन ए एंड दिस इज ट्रेन बी. तो ट्रेन ए का लेंथ दिया हुआ है, ट्रेन बी का लेंथ भी दिया हुआ है. सो आई एम राइटिंग दोस थिंग्स. वेलोसिटी ऑफ ए इज दिस, length of A, that is train A, is 120 meter, velocity of B is 30 km per hour, and length of train B is 80 meter. Okay, now this is a situation. In what time they will completely cross each other? Completely cross each other मतलब क्या? ऐसे करके ऐसे चला गया, completely एक साथ निकल जाएगा. कैसे पता चलेगा? So we need to find time. Lengths are given to you. Now the question is, कई क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि मान लो आफ्टर टाइम टी वो क्रॉस कर गया दोनों को, तो इनिशियली वो दोनों कितना दूरी में था ये बोला गया है? नहीं. इनिशियली व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द ट्रेन्स इज नॉट मेंशन्ड टू इन द क्वेश्चन. ओके, सो वी विल टेक इनिशियल सेपरेशन 0. तो जब कुछ मेंशन नहीं किया होता है इनिशियल सेपरेशन के बारे में क्लास, वी टेक द इनिशियल सेपरेशन एज 0. ओके, सो वी आर डूइंग लाइक दिस. सी, दिस इज ट्रेन ए, सो आई एम मेकिंग अ triangle this side, making a flag. That means flag is just for denotation कि मैं one flag से दूसरे flag का distance पता करूँगा. ठीक है ना? So this is train in the first rail, this is train in the second rail. Okay, initially they are just head on head. तो ऐसे तो नहीं होगा ना, ऐसा होगा ना तो अलग अलग पटरी में है. Okay, तो initial separation कितना है? No separation, 0. तो initial separation is 0. X 0. That is initial separation. तो व्हाट इज इनिशियल सेपरेशन? 0. क्लियर? तो ये सब तो लेंथ इन मीटर दिया हुआ है. इनिशियल सेपरेशन 0 मीटर लेंथ. डन. ना वो कंप्लीटली क्रॉस कब होगा? जब इसका एंड और इसका एंड ऐसा आ जाएगा, मतलब ये कंप्लीटली क्रॉस. यू अंडरस्टैंड क्लास? इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, लेट्स टेक पेन्स. थोड़ा पेन लेके थोड़ा समझते हैं बेटा. मान लो ये दो पेन हो गया, ये ए है, ये बी है, ऐसे करके है दो ट्रेन. तो ये कंप्लीटली क्रॉस इच अदर कब होगा? जब ऐसे करके ऐसे चला जाएगा. दैट मीन्स देयर टेल, उनका पीछे वाला पार्ट एक साथ होगा. तो वो मैं यहां लगा दिया. ओके, क्लियर क्लास? नाउ सी, जो इनिशियल सेपरेशन मैंने 0 लिया था वो किन के बीच का डिस्टेंस था? दो फ्लैग के बीच का डिस्टेंस ना. तो अब आफ्टर टाइम टी जब कंप्लीटली क्रॉस हो गया, दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस कितना है? लेंथ ऑफ ट्रेन्स के बराबर है 80 प्लस 120. सो 80 प्लस 120 मीटर. ये समझ में आया? ओके, सो इनिशियल सेपरेशन इज द डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग्स. द फ्लैग्स आर लाइक दिस. द डिस्टेंस इज 0. एंड व्हेन दे क्रॉस ईच अदर, द फ्लैग्स आर एट द एंड. So this is the area when they totally, this is the part when they totally completely cross each other. What is the final separation? So X final separation कितना हो गया? 200 meter. Done. We got initial separation, we got final separation, and both the bodies are moving with each other. Then we can use relative velocity concept. The velocity of B with respect to A is VB plus VA होगा, प्लस में है because opposite direction is equals to x minus x naught by t. ऐसा टाइम निकल जाएगा कितने टाइम बाद क्रॉस किया. तो vb प्लस va इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों वेलोसिटी. तो कितना होता है? 42 प्लस 30 that is 72 equals to x minus x naught. What is x?
फाइनल सेपरेशन इज 200 माइनस इनिशियल सेपरेशन इज 0 डिवाइडेड बाय टाइम. Okay, so what you got time? 200 by 72. Now what is the problem here? This is in meter, this is in kilometer per hour. तो सेम यूनिट कन्वर्ट करो, तो 72 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करो 72 into 1000 डिवाइडेड बाय 3600, ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड. ओके, ये कन्वर्जन मैं शुरू में नहीं किया, गलत कैलकुलेशन आता, बहुत ही गंदा सा कैलकुलेशन आता, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग एट द एंड. जो जरूरत है तब करूंगा. Now we cannot cancel these things, huh? Because one is in meter and there is kilometer per hour. So there are different units. So you have to convert a single unit. ये कट गया, ये कितना हो गया 220. So that is 200 by 20 meter per second. That is how much it is. 10 second is the answer. Now the train taken 10 seconds to completely cross each other. I hope you understand everything, class. Okay, so try to understand these things. ये वाला ऐसे है, फिर completely cross किया. Now we will do the next question. यहाँ पे भी ये चीज फिर से करना है. ओके, दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ईच अदर एंड नाउ वी विल गो फॉर ओवरटेकिंग ईच अदर. ओवरटेकिंग केस करेंगे. ओके, नाउ सी क्लास, two trains each of length 100 meter are running on parallel tracks. One overtakes the other in 20 seconds and one crosses the other in 10 seconds. Calculate the velocities of each train. यहाँ पे दो केस होगा. ओवरटेक कब होगा? जब सेम डायरेक्शन में जाएगा, दैट इज कॉल्ड ओवरटेक. क्रॉस कब होगा? जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा. सो एक तो मैंने पहले किया हुआ है. सो एक एक करके केस करेंगे, वहां से दो इक्वेशन आएगा, बिकॉज वी डोंट नो टू वैल्यूज. वेलोसिटीज नहीं पता ट्रेन का. सो लेट वी एंड वी बी आर द वेलोसिटीज ऑफ द ट्रेन. ओके, केस वन, क्रॉसेस ईच अदर. तो ये केस थोड़ी पहले पढ़ा. क्रॉसेस में ये हो गया इनिशियल सेपरेशन 0 और ये हो गया फाइनल सेपरेशन आफ्टर 10 सेकंड. पहले वाले क्वेश्चन में टाइम निकाला था, यहाँ पे क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ. 10 सेकंड बाद क्रॉस किया. वन क्रॉसेस द अदर इन 10 सेकंड. सो आफ्टर 10 सेकंड द सिचुएशन विल लुक लाइक दिस. सो ये फ्लैग यहाँ चला जाएगा, ये फ्लैग यहाँ. तो कितना सेपरेशन हो गया? 200 लेंथ ऑफ ईच ट्रेन. दिस इज द फाइनल सेपरेशन, दिस इज द इनिशियल सेपरेशन. सो सिंस दे आर ऑपोजिट डायरेक्शन, तो रिलेटिव वेलोसिटी प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू x minus x1 by t. फ्रॉम देयर वी गॉट एन एक्सप्रेशन. इक्वेशन मिल गया. नाउ ये थोड़ा ध्यान से समझेंगे. ओवरटेक मतलब ऐसे जाएगा. तो इनिशियली वो कितना दूरी में था नहीं बोला है. सो व्हेन दे ओवरटेक ईच अदर, ओके, तो वन बॉडी इज दिस साइड, अनदर बॉडी दिस इज द बैक साइड. हियर both front side we have calculated. Both front flag is there in the front part because initial separation is the distance between both the fronts. But now initial separation will be the back of the first car, back of the first train and front of the second train. तो अब फ्लैग यहां लगाएंगे. देखो, जो आगे है उसका बैक साइड में फ्लैग लगाएंगे, जो पीछे है ट्रेन उसका फ्रंट साइड में फ्लैग लगाएंगे. तो these two flags distance is 0 initially. Since the initial distance is not given to you, जब वो ओवरटेक करेगा तो इनिशियली कितना दूरी में था ये नहीं पता मेरे को. ठीक है ना, ऐसा करके इनिशियली कितना दूरी में था नहीं पता. तो इसका कैप और इसका व्हाइट कैप विद ब्लैक टेल कितना दूरी में नहीं पता, तो मैंने बोला इतना दूरी में 0 है. उसके बाद क्या होगा? So the flags, the positions of flags will change now. Initially the positions of flags were both at the head of the train, but now the initial train, the train which is in front, इसका tail and the train which is in back, उसका front, उनके बीच का distance देखना पड़ेगा ना, इनके बीच का distance देखना पड़ेगा. Okay, that's why I put a flag in this. Now after 20 second बाद overtake कर दिया, that means A आगे चला गया, B पीछे रह गया. मतलब ऐसा हो गया, ऐसा था, अभी ऐसा हो गया. मतलब A का टेल और B का हेड, A का टेल B का हेड साथ में है. तो फ्लैग्स कहां चलेगा? ये वाला फ्लैग यहां चला गया और ये वाला फ्लैग पीछे हो गया. तो कितना डिस्टेंस हुआ? डिस्टेंस 200 मीटर. लेंथ ऑफ द ट्रेन 200, 100 plus 100. तो अगेन हियर आल्सो इनिशियल सेपरेशन इज 0, फाइनल सेपरेशन इज 200, बट दे आर इन द सेम डायरेक्शन. तो अब रिलेटिव वेलोसिटी फार्मूला क्या होगा? VA minus VB. अब सुनो, मैंने VA minus VB क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने ये आगे चला गया ना, मतलब A का वेलोसिटी ज्यादा है, इसलिए VA minus VB लिखा है. अगर तुमने B को आगे दिखाते, B आगे चला जाता तुम्हारा, तो यहाँ पे VB minus V होता. So in this question it doesn't matter to me. So why I am writing this equation? If you write VB minus VA keeping the same figure, it's okay. गलत नहीं, आंसर सेम आएगा. ओके, बट जस्ट आई एम राइटिंग VA minus V. Why? The reason is that A का वेलोसिटी ज्यादा है, तभी तो ओवरटेक किया ना. तो VA minus V ले रहे हैं, x minus x naught by t. Clear? So x minus x naught final separation is 200, initial separation is 0. कितने टाइम बाद ये लोग ओवरटेक कर लिया? 20 seconds बाद. From there we got one more equation.
we need to calculate the velocities. So we got two equations, one this and this. Add both the equations, you will get VA 15 meter per second. Subtract both the equations, you will get VB 5 meter per second. Okay, now see, we solve two questions, both are of similar type. They are just a warm up. Next video will come to the actual questions of relative velocity. Okay class, that's all for this video. Thank you.